गुरु साहिब जी को प्रणाम। उनकी प्यारी संगत को प्रणाम। साहिब जी सरबत्ता भला। These are beautiful memories, of beautiful times. And हर बार गुरु जी ने सबको प्रसाद बांटना, खुद सबको ब्लेस करना। और जैसे जैसे संगत बढ़ती गई, गुरु साहिब जी ने जो भी प्रसाद, हलवा प्रसाद होता था, वो लंगर में ही डाल देते थे। लंगर के साथ ही सबको मिल जाता था। उन्होंने पर्सनली देना बंद कर दिया था कई चीजें। और उन्होंने बोल दिया था कि मैं आई ब्लेस एवरीबडी थ्रू माई लंगर। तो लंगर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अदब ना खाओ। मतलब कि गुरु साहब जी ने एक दफा मेरे को बोला कि लंगर ਨੂੰ इतने प्यार नाल खाना चाहिए है। थिंक ऑफ इट इज मेडिसिन, ताकि वो सही असर करे। सो इट इज नॉट लाइक कि ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ और फिर लंगर खाओ ना। लंगर इज सपोज टू बी इन साइलेंस। कितनी लिमिटेड साडी सोच है कि जद ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ नहीं बनाना, कोई लंगर नहीं बनाना, और मैं सब कुछ उत्तों लावांगा। जब टाइम आया तो गुरु साहब ने बोला सारे डिशेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ। which I understand, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मतलब उन सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ। Guru Sahib Ji said, I am going to do 7 different prayers in my lifetime and I have 9 different खुशबूज। हर दफा जब साहब अपना कोई पाठ, मतलब वन सेट ऑफ प्रेयर शुरू करते थे, तो एक दफा देखा है ये। मतलब जब सुधा आंटी के साथ एक टाइम पे जो एक सेट पाठ का शुरू कर रहे थे, तो सुधा आंटी को बार बार बोलते थे कि मैंने घी खिला, मैंने मोटा कर, मैं पाठ शुरू करना है, मैं पाठ शुरू करना है। जब भी साहब किसी पाठ पे बैठते थे, उनकी बॉडी से उनका फैट काफी रिड्यूस हो जाता था। दैट्स व्हाट ही मेड मी अंडरस्टैंड, बिकॉज ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਸਿਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦ એનર્ਜੀ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਉਹ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੋਟੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਟੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਰੋਟੇ, ਨਾਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ पूरा पुलिसिंग कर रहे हैं। जिस तरह साग खत्म होता, सदाम साग साग डाल, सदाम एला, सदाम ओला। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਟੀ ਸੀ, ਐਟਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜੇ ਉੱਥੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਕੇ, ਫਟਾਫਟ ਥਾਲੀ ਪਕੜਾਈ, ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਤਮ, ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। किसी ने एक दफा पूछा था व्हाट विल बी गुरुजी's reaction to social media, and I had no answer because the only reaction Guru Sahib Ji I know had, ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ in newspaper form, in paper form, Guru Sahib Ji didn't like having his photograph there. एक दफा सुखी आंटी आइलैंड वाली, उनकी लड़की का नाम है शीना। शीना होगी 8 9 10 साल की, छोटी सी। और जब संगत चलेगी, शीना ने एक चिट्ठी पकड़ाई गुरु साहब जी को, और
गुरु साहब जी इस तरह देख के उठे बड़े गुस्से दे नाल और पीछे चले गए अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद मेरे को याद नहीं किसने बोला गुरु जी बुला रहे हैं आपको। तो मैं गई गुरु जी के पास। तो गुरु जी चिट्ठी दिखा दे कहते ए भी कोई तरीका है लिखने का। So I looked at the letter. For me, it was perfectly all right. It was a child telling Guru Sahib how much she loves him. And she had written, I love you a lot, and kisses, and, hearts, and all that. So I said, Guruji, she's a child. This is all right. I mean, इस विच तो कुछ गलत नहीं है। तो वो मेरे को डांट पड़ी। ए गलत नहीं है। कहना मैं ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੇ ਲਵ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਜੁਗਾ ਹਾਂ। मैं एक गंद दे जुगा नहीं हूं। And I thought completely Guruji was completely wrong. A, she was a child. B, she has come from a culture where this is normal. C, he is Guru Sahib. The intent is known by him. So how can he crucify a little baby for this? For me, Guru Sahib Ji was very wrong saying these things. And then I went outside and I said, Sukhi, Sheena wrote a letter to Guruji. She said, yeah. I said, he's very upset. She said, yeah, I know, he told me. I said, but there's nothing to be upset. There's nothing in it. Okay, there are heart emojis, there are kisses emojis or whatever. This is a little child telling her love for Guruji. And she said, it's all right, Bambi, it's how he wants it. But today I understand. आप सोचो 20-25 साल पहले ये बात हुई है। टुडे आई अंडरस्टैंड। और you see hugs, kisses, hearts, all emojis for Sahib. And I would like to request the Sangat with folded hands that Guru Sahib Ji कहंदे से गुरु जो हुंदा है बच्चे वांगर हुंदा है। तो आपके बच्चे को अगर ऑरेंज बार पसंद है, आप चॉकलेट बार तो नहीं खिलाओगे क्योंकि वो ज्यादा महंगी है और ज्यादा अच्छी है। आप तो वही खिलाओगे ना जो आपके बच्चे को पसंद है। इसी तरह गुरु साहब जी को ये इमोजीज वगैरह नहीं पसंद है, उनको सिर्फ प्रणाम पसंद है। आप सोचो अगर कृष्ण जी आपके सामने आते हैं या श्री गुरु गोविंद सिंह जी आपके सामने आते हैं या अल्लाह मियाँ आपके सामने आते हैं, what will you do? Will you go? No, you will give him so much reverence. You will give them so much. You will be floored. माता रानी आएगी तो आप उनके चरणों में जाओगे। तो इस टाइप का भाव हमारे गुरु साहब जी के लिए क्यों नहीं? आज सारी संगत इनके साथ जुड़ रही है अपना काम कराने के लिए। सारी संगत को कलयुग की प्रॉब्लम सबको है, बट जिससे आप अपना काम करा रहे हो, जिससे आप मोह लगा रहे हो, जिससे आप चाह रहे हो कि वो आपकी तकलीफें दूर करें, उनको फिर वो दो ना जो उनको पसंद है। नॉट व्हाट योर ईगो वांट्स, व्हाट साहिब वांट्स इज प्योर अनकंडीशनल लव। लव तो एवरीबडी डज। आई लव गुरुजी, आई लव गुरुजी, आई लव गुरुजी। बोलो आई लव यू अनकंडीशनली, फिर देखो कितना आपके आपके खुद की बुद्धि को कितनी समझ आती है कि गुरु साहिब जी आपको किस पास से लेके जाते हैं। गुरु साहिब जी सेड आई ब्लेस एवरीबडी इक्वली। जिन्ना खिंच लो उतना ही मेरा रिएक्शन होगा थोड़े को। बहन भाई होंगे दे विल बी सेपरेटली ब्लेस्ड, हस्बैंड वाइफ होंगे दे विल बी सेपरेटली ब्लेस्ड। भाई सोचो एक क्लास है और एक टीचर है, और जिसने पढ़ाई करी उसको मार्क्स मिल गए, जिसने नहीं पढ़ाई करी उसको मार्क्स नहीं मिल गए। ठीक है, पर वैसे भी सोच लो कि हम कलयुग में हैं, हम सतयुग से आ रहे हैं कि हम क्लास में कितनी दफा हम सारे नकमे फेल हो चुके हैं कि अब गुरु साहब को खुद आना पड़ा है हमें लेने के लिए। फिर क्यों ना हम उनको
उनके साथ उनके हिसाब से चले, जैसे वो चाहते हैं वैसे करें, नॉट व्हाट वी डिजायर। बिकॉज ये जो 2 पल की पॉपुलैरिटी है ना, ये तो ढल जाएगी, और फिर परसों आप क्या करोगे जब ये पॉपुलैरिटी ढल जाएगी? और देन यू हैव टू स्टैंड फेस टू फेस गुरु साहब, एंड गुरु साहब सेड, और मैं तो तेनू लंगर दिता सी, ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। दिस वाज अनदर थिंग अबाउट ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का टाइम होता है। एक दफा हम लोग गए हुए थे, जलंधर गए थे, और मैं गुरु साहब जी के, और आई वाज न्यू 6 मंथ्स, एंड हम गुरु साहब जी की कुर्सी के साथ बैठे हुए थे, एंड दोनों बच्चियां बाहर खेल रही थी, एक 2 साल की थी, एक 4 साल की थी उस टाइम पे। एंड गुरु साहब जी ने नुसरत फतेह अली खान का लगाया हुआ था, तेरे विच रब दिसदा, और मेरे को उस टाइम मेरी बिरती लग गई। मेरी पूरा ध्यान कभी नहीं लगा था पे ऐसे, पूरी बिरती लग गई। तो गुरु साहब जी ने जो म्यूजिक प्ले करते उनको बोलो फिर से प्ले करवाया। तो फिर से जब प्ले करना शुरू हुआ, नताशा मेरी छोटी लड़की भाग भाग के आके मेरी गोदी में बैठ गई और मेरी बिरती टूट गई। गुरु जी ने उसको गुस्सा किया, निकल इथों, इस तरह करके। And I just looked at Guruji and I'm like, okay, you are Guruji, but this is my child. You come afterwards. She comes first. I was very upset with this behavior. I mean, like, I am not separate from my child. My child is me and is an extension of me. बहुत टाइम बाद गुरुजी ने समझाया कि हर ब्लेसिंग दा टाइम होता है, एंड हर एक को हर टाइम पे ब्लेसिंग नहीं मिलती। आप सोचो, आना जाना आपके हाथ में नहीं, गुरु साहब जी के हाथ में, मंदिर में, ठीक है, सत्संग में। तो उस टाइम आपका ब्लेसिंग का टाइम है। वो टाइम में या तो आप अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरी कर लो, या आप गुरु साहब जी से ब्लेसिंग्स ले लो। जो ब्लेसिंग्स मेरे को उस पल में मिलनी थी, क्योंकि नताशा ने मेरी बिरती तोड़ तोड़ दी, सो गुरु साहब जी से यू आर लाइक अ लोटस, यू आर ओपन एट दैट टाइम, यू कैन रिसीव ब्लेसिंग्स। वो चीज उस टाइम बंद होगी कि मेरा ध्यान गुरु साहब जी से हट के नताशा में चल गया, तो वो मेरा टाइम निकल गया। ऐसे ही हर एक चीज का टाइम होता है ब्लेसिंग्स का। और गुरु साहब जी जब आपको बुलाते हैं तो आप प्लीज अब्सॉर्ब द ब्लेसिंग्स। मंदिर में, सत्संग में कोई काम का नहीं आता जब तक गुरुजी उसको आगे धक्का ना मारे और आपके पास ना लाए। ट्रस्ट योर साहेब सो मच, अंडरस्टैंड दैट या तो कर्ज है, या लेना है, या देना है, या साहब ने आपको आपकी जो स्पिरिचुअल लर्निंग है उसके लिए भेजा है। यू हैव टू डिसाइफर ना, आप जी क्यों रहे हो, कोई रीजन होना चाहिए ना जिसलिए जी रहे हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई वांट दिस टुडे, आई वांट दैट टुमारो। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? गुरु साहिब जी से आप जी पूछो, उनसे पता लगाओ कि आपकी लाइफ क्यों उन्होंने दी है, एंड ही आंसर्स एवरीबडी। ये याद रखो कि सारे इक्वल हैं गुरु साहिब जी की आंखों में। उन्होंने कहा था सब मेरे बच्चे हैं, सारियां विच मेरी रूह है। कहते थे मेरी रूह दा तिनका हर एक, माई लाइट इज इन एवरी चाइल्ड ऑफ माइंड। सो दिस रूह विच इज इनसाइड यू, विच इज बिटवीन योर फ्लोटिंग रिब्स, बड़ी भयानक रूह है, क्योंकि ये आपकी नहीं है, ये उनकी है। तब जब आप मर के जाओगे ना उनके पास, तो वो कहेगी कि इसने तो ये किया था, इसने ये सोचा था, पर इसने फिर ऐसे कर दिया। दे आर नो सीक्रेट्स। जितना मर्जी किसी चीज को कब्ज के नीचे छुपा दो, दे आर नो सीक्रेट्स। साहब के सामने कोई सीक्रेट्स नहीं है, साहब को सब पता है। एक दफा एक औरत आई थी अमेरिका से, एंड जब संगत बहुत कम हो गई तो साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे। He allowed her to come. He knew what she was up to. So she gave a photograph to Guruji and said, Guruji, मेरा हस्बैंड को ब्लेस कर दो। गुरुजी ने वो गालियां निकाली उसको।
कंजर बीइंग गुरुजी's फेवरेट गाली, वो गालियां निकाली और बोला कि तेरा मियाँ लेटा होया घर विच बीमार, नर्स ਦੇ ਕੋਲ छोड़ के तू मेरे को मैनू दस रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे, निकल इथों, की समझा। सब कुछ रास था ही नहीं। जब आप समझ जाओगे कि सब कुछ उनको पता है, और अरदास करती हूँ गुरु जी के ये कलयुग का रास्ता सबके लिए आसान बना दे, ताकि सबको समझ आए कि गुरु जी एक्चुअली सब कुछ जानते हैं, ताकि आप जिंदगी खुश होकर जी सको। क्योंकि आपकी जो भी तकलीफ है हमारे कर्म है, वो तो हमने डील्स बनाई है साहब के साथ आने से पहले। थिंक ऑफ देम एज कॉन्ट्रैक्ट्स, डोंट गेट इमोशनल। whether I haven't reached that. I'm just telling you what Guruji's words are. Whether it's your husband, whether it's your children, whether it's your parents, whether it's your staff, whether it is anybody who even comes and touches you, it is karmic, it is written, it is only 3 times in your life where you will be making a huge karmic balance. Other times a little, it doesn't hardly matters, making small decisions. But 3 basic times when you are judged for your karma, that all these things will happen. But you leave them to Guruji, na? Let him take care of it. Let him be responsible for you so that you can enjoy life. Can they see? To enjoy life, to never let life let you down, to never let depression get you down, because I am always there to get you out of it. So Guruji, can they see पाठ बड़ा जरूरी है. And मेरी mother-in-law, because I am married into a Sikh family, was very adamant that I should do पाठ, because she wanted कि जो भी मैं सिखाऊंगी, obviously I will pass it on to my kids. सवेरे उठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना, फिर जो भी दूसरे पाठ करने हैं, मतलब 1 आध घंटा लग जाता था. बट व्हेन आई मेट गुरु साहिब जी asked me, अच्छा तू की पाठ कर दी है? So I said very proudly, Evi, Ovi, Evi, and I knew the Guru Sahib Ji understood Punjabi and knew the Sri Guru Granth Sahib by heart, like panne wise, Guru Ji knew. And then Sahib Ji says, छठ पर है सब कुछ. I said, सब कुछ छोड़ दो? कहते हाँ, सब कुछ छोड़ दे, करने की जरूरत नहीं. Like, okay. And I'm thinking in my mind, what am I going to tell my mother-in-law? ये तो अच्छा एक्सक्यूज मिल गया, आई डोंट नीड टू स्पेंड 1 hour डूइंग पार्ट. मैं गुरु साहिब जी का नाम लेके मैं कहूंगी हाँ, आई कैन लीव ऑल द पार्ट. फिर कहते ने थोड़े दिनों बाद, ठीक है, फिर कहते ने अच्छा इस तरह कर, 5 मिनट वास्ते बैठा कर, अपना मैट लगा और बैठ जा, और 5 minutes बाय द क्लॉक अपना पाठ करो. साहब से ठीक है. तो मैंने बोला मंत्र कौन सा बोलूं? कहते जो मर्जी बोल, मेनू याद करो जो मर्जी बोल. सो 5 minutes वॉज वेरी इजी, फटाफट हो जाना से. 1 2 हफ्ते 5 minutes हुआ, उसके बाद गुरु जी ने बुलाया, कहना हूं ना 10 minutes कर लो. तो 10 minutes मेडिटेशन औखा है. तो देन इट वाज लाइक घड़ी को देखो मेडिटेशन करो, घड़ी को देखो मेडिटेशन करो, वो टाइम 10 मिनट ही ना लगे. और उस टाइम पे सबने, स्टाफ ने भी बुलाना होता है, बच्चों ने भी बुलाना होता है, मियाँ ने भी बुलाना होता है, सास ससुर ने भी बुलाना, मतलब सब ने बुलाना होता है, सबको मेरे को बोल के जाना पड़ता है 10 मिनट के लिए, मेरे को कोई ना बुलाए. और उसके बाद थोड़े हफ्तों बाद गुरु साहब जी ने बोल दिया अब 15 मिनट करो. 15 मिनट कौन बैठे, किस तरह बैठे, मेरे तो बस की थी नहीं. और उस टाइम गुरु जी चले गए पंजाब, उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी. तो मतलब आई वॉज स्टक विद दिस 15 मिनट फॉर ऑलमोस्ट 3 months. 3 months के बाद उन्होंने फिर मेरे को बुलाया जलंधर. हम लोग रुके रिम्पल आंटी के पेरेंट्स के घर में. उनकी मदर, परमजीत नाम था उनका.
उनके साथ मेरी ना कनेक्शन कर दी। तो एक दिन साहब जी टो लगा के बैठे हुए थे अपने डिफेंस कॉलोनी के कमरे में। अपना कमरा जो उनका था नीचे ना जमीन पे, बैक ऐसे बिस्तर के लेग की तरफ टो लगा के बैठे, फुटबोर्ड पे। एंड आंटी ना उनके यहाँ बाजू दबा रही थी और सैटियर में चरण पे। एंड आंटी और गुरु साहब जी बातें कर रहे थे। और गुरु साहब जी कहते से ले ले चक ले। आंटी कहते ना गुरु साहब जी ना, मैं नहीं कर सकती। कहते ले ले चक ले। वो उनकी बातचीत चलती रही। उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, हमने कुछ नहीं बोला, हम दोनों बैठे रहे। पर इट इज इंटरेस्टिंग टू सी, यू नो, the banter going on between Saib and his disciple. And at that time, Auntie was much older than Saib. In fact, Saib was 19 when he met, when he allowed Rimple's mother to come into his fold. And फिर कहते ने इसनु 10. So then I could not see, but Guru Sahib ji ने ऐसा सी उन्होंने था थे आंटी दोबारा सी। तो आंटी said यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े डायमंड्स हैं, इतने बड़े बड़े डायमंड्स हैं, इतने अंडे जैसे डायमंड्स हैं। और गुरु साहब जी मेरे को कह रहे हैं उनको चख लें। And I'm wondering, okay, if they're lying there, why aren't you picking them up? She says, but there's a thin layer of skin on top of that. And if I pull those diamonds out, it's going to hurt Guru Sahib Ji. So I don't want to pull them out. So she said, मैं लेना नहीं चाहती। और गुरु साहब जी कह रहे नहीं, मैंने कुछ नहीं होगा, तू ले ले। And that was a beautiful relationship they both had. And बाद में जाके गुरु साहब जी ने आंटी ਨੂੰ आई थिंक डायमंड ਦੇ ਇਅਰਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ उन्होंने कहते ने अच्छा ਬੈਂਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, all of us, four of us were together, and auntie says सब कुछ मन विच करना है, मतलब कोई चीज बना के नहीं करनी, सब कुछ मन में करना है। जैसे गद्दा लगा उसनु मार, पहले कॉटन के गद्दे होते थे ना, लगा मार उसनु सीधा कर, फिर सोना जो चोला लगा तो उसके वट दूर कर। दीज आर द वट्स ऑफ योर लाइफ, द फोल्ड्स ऑफ योर लाइफ, उसनु सीधा कर। थिंक ऑफ अ ब्यूटीफुल कलर दैट यू वांट गुरु साहिब जी टू सिट इन। कहते ने एक एक फूल लगा, pink, red, orange, place it here, make a om here, make एक ओमकार दे, अगरबत्ती लगा, क्या कहते हैं, दिए जला, बेशक 100 दिए जला, और रास्ता बना के रख। जब तू तैयार होगी फिर अरदास कर कि गुरु साहिब जी ਤੁਸੀਂ आओ इस सोने जगत पे बैठो। एंड देन थिंक ऑफ गुरु साहिब जी कमिंग, कैसे खच 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 उनका चोला करता था ना, चोला में मार होता था, तो खच 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 चोला आके गुरु साहिब जी बैठते। कहते हैं फिर ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ठीक है, कि ओ मोया आई सी, उसने ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ दिन। जो भी ਤੁਸੀਂ कहना है, कहना साढ़े अंदर जन्मा दा गंद है, वो निकालो, वो सब कुछ निकालो, वो सब कुछ निकालो, so that you get empty, and then Guru Sahib Ji will fill you with the mantra. Guru Sahib Ji will fill each one of us with the mantra, and then the meditation will start. पहले तो बड़े साल तो मैं सिर्फ यही किया, गल्ला 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 गल्ला, और एंड में 2 मिनट ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाए, ओम नमः शिवाय शिव जी सरसाए, बस दिस वाज द पार्ट। एंड जब खत्म करो, say thank you Sahib Ji for coming, please remain with us throughout the day and keep with us, and so part, then Guruji would say इस तरह पाठ कर। then I could do 20 minutes of part of meditation, क्योंकि I would go slow with the flowers, put them nicely, अगरबत्ती अपना आराम से कि सब कुछ करना। और फिर गल्लां भी बड़ी सी बहुत सारी सी उस टाइम पे, बहुत सारे गिले शिकवे सी गुरु साहब जी दे नाल करन वास्ते, ते वो सारे करते सी। सो दैट्स हाउ द मेडिटेशन स्टार्टेड। और फिर तिनका 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 करके ना गुरु साहब जी ने शिव पुराण शुरू कराए, क्या कहते हैं, ग्रंथ साहिब पूरा पढ़वाया, मतलब हर चीज का छोटा 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 छोटा। फिर
एक दफा हम हॉट मिलियंस गए चंडीगढ़ में। वहां देयर वाज अनदर लेडी एंड मी एंड वी डिसाइडेड, गुरु साहिब जी से तुसी दोनों आओ वॉक करांगे। सो वी वर टेकिंग दिस वॉक। दो फाउंटेन्स टाइप थे, उसके आसपास रास्ता वो पाथ बना हुआ था, तो हम लगे हुए थे। तो आंटी कहती हैं कि मैंने ना गुरु साहिब जी से बात करनी है, तो आप थोड़ा पीछे हट जाना। मैंने कहा ठीक है आंटी, आप कर लो, फिर बाद में मैं कर लूंगी। तो पता उस टाइम पे हर एक की लिस्ट होती थी, दिमाग में होता था हम क्या 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 हमने बोलना है। तो फिर आंटी बोलने लगी जो भी बोली थी। गुरु साहिब जी की ना आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जा रही थी। आफ्टर सम टाइम आंटी सर आई तो कांट कीप अप, मैं तो गल नहीं कर सकती। मैं चली, ओके चलती हूँ, मैं करती हूँ। ओ गुरु साहिब जी की स्पीड ना टर्बो हो गई थी फिर। वो इतने तेज चलने शुरू हो गए कि मैं उनको पकड़ ही नहीं सकी। और मेरे मन में चल रहा है ये मैंने पूछना है, ये मैंने पूछना है, गुरुजी 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 गुरुजी। फिर जाके मेरे से काफी आगे निकल गए और सैटी के पास, गाड़ी के पास खड़े हो गए। जब मैं वहां पहुंची कहते हैं तुझे इतनी गल्ला कर दी है, तो इतनी गल्ला करने लग गई है। एंड आई वॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन, आई वॉज नॉट अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। एंड आई फेल्ट सो अपसेट कि गुरु साहिब जी ने ऐसे क्यों बोला है। मैंने तो सिर्फ ये वाली बातें करनी थी, वैसे तो मैं इतनी बातें करती नहीं हूँ। 20 years down the line, we were doing a play in modern school, and the parents circle were doing a play, and there a friend of mine, Riti auntie, her husband Mukul says to me, अरे सैटी तंग नहीं होता? मैंने कहा क्यों? कहती तुम इतनी बातें करने लगी हो, तुम इतनी बातें करती हो, तुम इतनी बातें करती हो। The same words. I just looked at him blank. I couldn't tell anything, say anything to him. मतलब उस टाइम तो सुना दी थी जो सुनानी थी, बट मेरे मन में चल रहा था कि ये तो गुरुजी ने बोला था मेरे को इतने साल पहले। तो मैं वापस घर आई, मैंने बोला सैटी को ना आज मुकुल ने मेरे को ऐसे बोला है कि मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातें करती हूँ। तो कहते हैं उसको जाके बोल मेरे को तू पसंद है ऐसे, इसलिए तू ऐसे है। मैंने कहा नहीं नहीं सारी, वो बात नहीं है। गुरु साहिब जी ने वो 20 साल पहले बोला था कि तू इतनी बातें करने लगी है। वो तब से मेरी बातें ऐसी ही शुरू हुई हैं कि आजकल पूछो नहीं, सत्संग में भी बहुत ज्यादा बोल लेती हूँ। इसलिए बोला जाता है शायद ये भी उनका प्रसाद है। सो इट इज साहिब्स ब्लेसिंग्स इफ टुडे एनी ऑफ अस कैन डू एनीथिंग, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई मिरेकल्स होते हैं। हर एक के घर में गुरुजी अपने अपने आप को शो करते हैं कि मैं हूं, पर हम हैं जो एक सेकंड में भूल जाते हैं कि वो तो जी कल था, गुरु जी आज अब भी हैं। और इस करके हम लोगों को गुरु साहब को बहुत ट्रस्ट करना चाहिए विद ऑल आवर हार्ट, बिकॉज आजकल देखो हर एक जगह वॉर है, हर एक जगह धरती माँ ने भी अपना तूफान उठाया हुआ है। कि ऐसे टाइम में इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द डिवाइन, then how can you know where to put your foot? So increasing your telepathy is so important with Sahib, so that you can know where to go, where to put your foot, and where you will be safe. And today, more than money, more than anything else, it is very important to know that wherever Sahib puts you, you're safe, your family is safe. आज मन में इतना ही आ रहा है